الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار اور میں ہوں ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں کہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نیب قوانین میں ترمیم کے معاملے پر از خود نوٹس لے۔ نیب ترامیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ نیب قوانین میں ترمیم سے یہ سب اس شکنجے سے آزاد ہو گئے ہیں۔ یہ وہی ترامیم ہے جو ہم سے یہ NRO 2 مانگ رہے تھے۔ حکومت کا کوئی نظریہ ہے نہ کوئی ایجنڈا، انہوں نے خود کو NRO 2 دیا ہے۔ فیصلہ کیا کہ اسفندیار ولی کیس کو سامنے رکھ کر کراس از خود نوٹس لیا جائے گا۔ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ترمیم کے بعد نیب بے معنی ہو گیا۔ ترمیم سے 80% کیسز نیب سے دیگر کورٹس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ نیب کو اینٹی کرپشن پنجاب یا FIA بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق بھی انہیں پسند نہیں آیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو NRO 2 دیا ہے، یعنی کہ عمران خان سے تحریک انصاف سے جو NRO مانگ رہے تھے اور جو ہم سے نہ ملا، وہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یکجا بھی ہوئے ہیں اور یہ ترمیم بھی انہوں نے پیش کی ہے کہ اسفندیار ولی کیس میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں کوئی ترامیم کی جاتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو رپورٹ کی جائیں۔ نیب کا جو لا ہے اور جو نیب کا محکمہ ہے پریکٹیکلی ڈس فنکشنل ہو گیا ہے، بے معنی ہو گیا۔ جو تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا، ان کو یہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے انفیکٹ نیب کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب بنانے کی کوشش کی ہے یا FIA بنانے کی کوشش کی ہے۔ جو نیب کے کیسز تھے انڈر ٹرائل، اس ترمیم کے بعد، اس قانون سازی کے بعد they will be affected. Almost all cases will be affected. ان میں سے 80% کیس منتقل ہو جائیں گے نیب کورٹ سے دیگر کورٹس کی طرف، جو کہ ان کی مراد تھی، اور کچھ کیسز جو ہیں وہ واپس منتقل کر دیے جائیں گے نیب کو۔ ہم ایک تو سپریم کورٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اسفندیار ولی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے آج خود اس کا نوٹس لیں۔ سابق صدر آصف زرداری اور ملک ریاض کی آڈیو ٹیپ منظر عام پر آنے پر وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے NRO مانگا۔ غیر ملکی سازش کی جعلی کہانی تیار کی گئی، تاہم جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ملک ریاض کی آڈیو ٹیپ لیک ہونے پر سابق وزیراعظم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی آڈیو ٹیپ عمران خان کی منافقت اور دوہرے معیار کو بے نقاب کرتی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے لکھا، اپنے دعووں کے برعکس عمران خان نے خود کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے NRO مانگا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد عمران خان نے غیر ملکی سازش کی جعلی کہانی تیار کی، تاہم ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ آزادی مارچ کے دوران کارکنان پر مبینہ تشدد کے خلاف تحریک انصاف کل سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گی۔ سپریم کورٹ بتا دے یہ دوبارہ ملک بند کر دیں گے، یہ عدلیہ کا امتحان ہے۔ ٹویٹ میں لکھا، حکومتی حربے قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ آزادی مارچ کے دوران کارکنان پر مبینہ تشدد کے خلاف تحریک انصاف کل سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی کارکنان کے خلاف تشدد کی ویڈیوز بھی جاری کر دیں۔ رات کے اس ٹائم جو ہے وہ عورتوں کو اور بچوں کو اس طرح سے ہراساں کر رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ سے پوچھیں گے لانگ مارچ میں دوبارہ پکڑ دھکڑ ہوگی، سپریم کورٹ بتا دے یہ دوبارہ ملک بند کر دیں گے، یہ عدلیہ کا امتحان ہے۔ چیئرمین PTI نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، حکومتی حربے قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ آزادی مارچ سے ایک رات پہلے پنجاب اور سندھ پولیس نے خاندانوں کو ہراساں کیا، آئین اور سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی گئیں، پولیس نے پرامن مارچ کے مظاہرین پر بربریت کی۔
PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल को इस नहज तक पहुंचाने में PTI की गलतियों का भी एतराफ़ किया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? क्या इन सालों की तरह अगली 4 दहाइयाँ भी ज़ाया कर दी जाएंगी? क्या आप ये विरासत छोड़ कर जाना चाहेंगे? उनका कहना था कि लोगों के गुस्से को कम ना समझें, लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुल्क वहां पहुंच गया है जहां से चलाना सियासी पार्टीज के बस में नहीं। 11 इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत जितना जोर लगा ले, दुनिया की कोई ताकत इन्हें घर जाने से नहीं रोक सकती। ट्वीट में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि आइंदा माह जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। क्या एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों के सहारे और IMF की खैरात से हुकूमत चलाई जाएगी? करप्ट हुकूमती लोग नैब, ANF और FIA में अपने ऑफिसर लगाकर केस खत्म करवा कर घर चले जाएंगे। इनमें मुल्क की तबाह हाल मईशत बचाने की सलाहियत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि धमकियां देने वाले अब मिन्नते, तरले और वास्ते देने लगे। अगले माह आएंगे तो किसी के कहने पर घर नहीं जाएंगे का बयान देने वाला खूनी फसाद में दुम दबाकर भाग गया। शेख रशीद अहमद के बयान पर रद्द अमल देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दे दी है। दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपड़ासी दोनों मैदान से भाग गए हैं। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके आवाम के गजब से बचना चाहते हैं। और नाज़रीन, यहाँ आपको बता दें कि मुस्लिम लीग नून ने मानसेहरा में पिंडाल सजा लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कुछ देर में आवाम का लहू गरमाएंगे। ठाकड़ा स्टेडियम में जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साथ ही आपको बताएं कि कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। पिंडाल और इलाके को मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए भी सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। जी बिल्कुल, नून लीग आज मानसेहरा के ठाकरा स्टेडियम में सियासी पावर शो करने जा रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब भी करेंगे। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। हमारे नुमाइंदे नौमान शाह ठाकरा स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। नौमान, बताएगा, इस वक्त आप स्टेडियम में मौजूद हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, मानसरा के ठाकरा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर जो है मरियम नवाज शरीफ जो है आज जो है ठाकरा क्रिकेट स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगी। कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में कारकुनान जो है आ रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद जो है कारकुनान की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है। तकरीबन 3:30 से 4 बजे जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की आमद जो है वो मुतवक्के है। जलसे का जो है बाकायदा आगाज हो चुका है। मकामी कायदीन जो है उनके खिताब जो है उनका सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज का ये जो जलसा है इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है मानसरा के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। मानसरा तक मुजफ्फराबाद मोटरवे का बुनियाद रखा जाएगा। मानसरा में सुई गैस के मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि इसके अलावा जो दीगर बहुत सारे मंसूबे हैं उनका भी इफ्तिताह और सगे बुनियाद जो है वो मुतवक्के है। जी, मानसेहरा में पिंडाल सजा लिया है, तैयारियां तमाम तर मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कुछ देर में आवाम का लहू गरमाएंगी। तफसीलात से आगाह करे थे नौमान शाह, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, क्वेटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोट डालने के लिए बाकी 2 घंटों से भी कम वक्त रह गया है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 32 अजला में वोट डालने का सिलसिला जारी है। 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, 838 यूनियन काउंसिल्स, 5343 देही और 914 शहरी वार्ड्स के लिए उम्मीदवार मुद्दे मुकाबिल हैं। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर 2034 पोलिंग स्टेशन को हसास,
1974 कम हसास, जबकि 1218 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर FC, लेवीज और पुलिस तैनात की गई है। बल्दियाती इंतखाबात के दंगल में 1584 वार्ड्स पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। 4456 उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 23,835 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। सूबे भर में 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 12,219 पोलिंग बूथ हैं। 6,350 मर्दों जबकि 5,880 खवातीन के लिए बनाए गए हैं। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में 35,52,358 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। रजिस्टर्ड मर्द वोटर की तादाद 20,06,274, जबकि खवातीन के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 15,46,124 है। वाज़ेह रहे, कोयटा और लसबिला अजला में दोबारा हल्का बंदियों की वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे, जहाँ इंतखाबात दूसरे मरहले में होंगे। बलूचिस्तान के दीगर अजला की तरह सोबतपुर में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सुबह 8 बजे से होने वाली पोलिंग जारी है और वोटर्स की बड़ी तादाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख भी कर रहे हैं। पोलिंग के दौरान मुतादिद सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान तसादुम के वाकयात भी हुए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 सामल जान से। जी सामल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला सोबतपुर में बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग के बंद होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। जिला भर में पोलिंग का अमल खुशअसलूबी से जारी है। चंद मकामात पर उम्मीदवारों के हामियों में मामूली तलख कलामी के वाकयात रूनुमा होने की इतलात मौसूल हुई है, मगर पोलिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। जिला भर की तमाम पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस के जवान अपने फराइज सरंजाम नहायत खुशअसलूबी से फराइज सरंजाम दे रहे हैं। हमारी जब वहाँ के वोटर से बात हुई तो उनका कहना था कि पोलिंग का अमला हमारे साथ भरपूर तावन कर रहा है। जी सावल, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में 32 अजला में जारी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में रिवायती हरबों का इस्तेमाल भी जारी है। कोल्हू में यूनियन काउंसिल मिस्री खान माकोड़ी में कशीदगी के बायस इंतखाबी अमल रोक दिया गया, जबकि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक शरपसंद अनासिर कशीदगी के बाद स्टेशन से बैलेट पेपर्स भी जबरदस्ती ले गए। डेरा मुराद जमाली में जाली वोट कास्ट होने पर जामोट कौमी मूवमेंट के कारकुनान ने पोलिंग स्टाफ के खिलाफ नारेबाजी और पुलिस की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई, आंसू गैस और शेलिंग का इस्तेमाल करके हालात को कंट्रोल में किया गया। साथ ही आपको बताएं कि सिब्बी में भी मिल चाचड़ पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में तसादुम और फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए। तसादुम के बाद पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू कर दिया गया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हरनाई में कुली खुदरानी और कली उस्मानी पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर बुक भी गायब कर दी गई। डेरा बुगटी में इलेक्शन अमले और वोटर्स के दरमियान तल्ख कलामी देखने में आई। वार्ड नंबर 4 के मोहल्ला काली में वोटर्स इलेक्शन अमले से उलझ पड़े। दक्की म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 पर 2 उम्मीदवारों के हामी आपस में ही लड़ पड़े। चमन में मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए और सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान लड़ाई झगड़े से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है। गडानी के साहिल पर नौजवान पहाड़ी से समुद्र में गिरकर डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों और नौजवान की लाश निकाल ली गई है। साथ ही आपको बताएं, कराची से पिकनिक मनाने के लिए आने वाला नौजवान गडानी में समंदर की बेरहम मौजों का शिकार बन गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नौजवान पहाड़ी पर खड़े होकर तस्वीर बना रहा था कि पांव फिसलने के बायस समंदर में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए नौजवान की लाश समंदर से निकाल ली। नौजवान की शनाख्त अजान वल्द बिलाल के नाम से हो गई है। गुजरांवाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में करंट लगने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक करंट लगने का वाकया खुदाई के दौरान पेश आया, जहां जेर जमीन बिजली के तारों से करंट लगने से मजदूर मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में रोमान खान और नेक रहमान शामिल हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की सूरत हाल की। महंगाई का बेकाबू जिन इतवार बाजारों में भी पहुंच गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से सब्जियों और फलों समेत हर चीज़ की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। महंगाई की नई लहर पर शहरी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। इस्लामाबाद के आपारा बाजार में मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़1 अहमद नवाज और वो रिपोर्ट कर रहे हैं। से कैंप किए गए हफ्तावार सस्ते बाजार
शहरियों को किस हद तक महंगाई से रिलीफ दे पा रहे हैं कि नहीं, आइए जानते हैं शहरियों से उनकी ज़ुबानी। महंगाई की नई लहर आई है आपके सामने, जो पेट्रोल 30 रुपए बढ़ा है, सब्जी मैंने ली है 70-80 रुपए से कोई सब्जी कम नहीं है। कहने को तो ये हफ्ता बाजार है, लेकिन यहाँ पे गरीब आदमी का जो गुजारा है बिल्कुल मुश्किल है। हर हफ्ते महंगाई हो रही है। 30 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ, 30% हर चीज़ महंगी होगी। मार्केट में अगर 100% तो यहाँ पे 80% के हिसाब से है, तो तकरीबन यहाँ पे बेहतर है। और ये लेकिन चीज़ों की क्वालिटी की जो है ना, थोड़ी सी इनको ये जो करनी चाहिए ना, कंट्रोल ना। शहरियों ने महंगाई का शिकवा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरामैन शाहिद इमरान के साथ अहमद नवाज, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। पेट्रोल क्या महंगा हुआ, खाने पीने की अशिया के दाम भी बेलगाम हो गए। इतवार बाजार में भी महंगाई का सिलसिला जारी है। सब्जी हो या फल, सब महंगा हो गया। मजीद अहवाल के लिए रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान थमने का कोई नहीं नामो निशान। मार्केट हो या बचत बाजार, हर तरफ मची है लूट मार। लाल टमाटर 100 को क्रॉस कर गया, प्याज भी 60 रुपए किलो। भिंडी, तोरी, मटर, अदरक, लेमू समेत सब के दाम बेलगाम। फल तो आवाम की पहुंच से दूर ही हो गए। दर्जा अव्वल और दोम ने सबको उलझा दिया। कीमतें भी 100-200 से कम नहीं। महंगाई के मारे अवाम की कीमत खरीद भी जवाब दे गई। ये सारी हुकूमतें ऐसे ही करती हैं। जो खान साहब थे वो भी दूसरी यही बातें कर रहे थे, अब ये लोग आए हैं ये भी यही बातें करते हैं। अवाम के लिए आज तक किसी ने सोचा नहीं है, क्योंकि ये 30 रुपये जो बढ़ाए हैं उससे भी अभी जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। 30 रुपये पेट्रोल पे अभी सारे रेट डबल हो जाएंगे अगले हफ्ते से। आवाम के लिए बहुत मसला है, क्या करना। जो चीज़ पहले 1200-1300 रुपए की सब्जी आती थी एक हफ्ते की, अब वो 2000-2500 की आ रही है। कभी मिर्च से खाते हैं, कभी नहीं पकाते सालन, बस ऐसे ही गुजारा चलता है और क्या करते हैं। शहरियों का गिला है कि सबको कुर्सी की पड़ी है, आवाम के लिए महंगाई के सिवा कुछ नहीं। कैमरामैन नवीद के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन की है कि कुछ रोज कबल उनकी पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात हुई थी। आलमी इक्तिसादी फोरम में बातचीत करते हुए इस्राइली सदर ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते उनसे 2 वफूद ने मुलाकात की, जिनमें अमेरिका में मुकीम 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। इस्राइली सदर ने वफ्द में शामिल पाकिस्तानी हुक्काम का नाम जाहिर नहीं किया, ताहम कहना था कि पाकिस्तानी वफ्द से उनकी मुलाकात बेहद खुशाइंद रही है। वो मारूफ पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में रहते हैं। जबकि दूसरी जानिब इस्राइली सदर ने पाकिस्तानी वफूद के साथ मुलाकात की तस्दीक कर दी है। तहरीक इंसाफ किसी सूरत इसराइल को तस्लीम करने के हक में नहीं है। इमरान खान की हुकूमत तब्दील करने में अमरीकी साजिश सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप से हमारे सिफारतकार की मुलाकात की पूरी तफसील मौजूद है। मुल्क में लूट बाजार का मेला लग गया। आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द भारत रवाना। 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में शुरू होंगे। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह का कहना है कि मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी की इत्तला पर बात होगी। वाघा बॉर्डर के रस्ते इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द भारत रवाना हो गया। सैयद मेहर अली शाह का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। दरियाए सिंध पर छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। दरियाए चनाब पर इंडिया के 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनकी रिपोर्ट फाइनल की जाएगी। इंडियन साइड से जो पाकिस्तान के दरिया आते हैं और जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स आते हैं और वेस्टर्न रिवर्स आते हैं, तो उन पे एडवांस इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ट्रीटी पाकिस्तान को राइट देती है कि इंडियन साइड पाकिस्तान को एडवांस फ्लड इंफॉर्मेशन देगी। लेकिन इस वक्त जो बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया के हैं वो हैं बुनियादी तौर पे दरिया चनाब में। सैयद मेहर अली शाह का कहना था जिन प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान को एतराज है, इनमें से एक पाकल दिल कैरो हाइड्रो पावर है। कैरो पर काम शुरू किया है। हमारे एतराज पर भारत ने कहा है कि वो रिपोर्ट पेश करेगा। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है
اور پھر اس کے بعد یہ پکڑ لیا تو کوار کے اوپر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان کی انڈین سائڈ نے اس پہ کام شروع کیا ہے. جب اس کی انفارمیشن آئے گی اس کے اوپر ہم ٹریٹی کے مطابق جو اعتراضات ہوں گے وہ شیئر کریں گے. انڈس واٹر کمیشن حکام کے مطابق یہ وفد صرف اجلاس کے لیے جا رہا ہے. معائنے کے لیے الگ وزٹ ہوں گے. وفد میں ڈی جی محکمہ موسمیات، محکمہ آب پاشی، نیسپاک اور وزارت خارجہ کا نمائندہ شامل ہیں. آبی تنازع پر 2 روزہ مذاکرات کل سے نئی دلی میں ہوں گے. کیمرامین ہارون احمد کے ساتھ عدنان خالد، نیوز 1 لاہور. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم حد سے بڑھنے لگے ہیں. سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. گزشتہ 4 روز کے دوران شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 12 ہو گئی. مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم. بھارتی فورسز کی جانب سے جعلی اور نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کا سلسلہ تیز ہو گیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی کے ضلع اسلام آباد میں گھر گھر تلاشی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں اشتیاق احمد غنی اور یاور ایوب داڑ کو شہید کر دیا گیا. قابض فورسز نے نوجوانوں کو شہید کرنے کے بعد لاشیں لاواحقین کے حوالے کرنے سے بھی انکار کر دیا. 14 کے اہل خانہ اور علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے. حریت رہنما یاسین ملک کو سزا سنائے جانے کے بعد سے اب تک 4 روز کے دوران مقبوضہ وادی میں 12 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ کے 46 امن مشنز میں حصہ لیا. پہلی بار پاک فوج کا دستہ کانگو میں امن مشن کے لیے تعینات کیا گیا ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام. کہا اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کا سفر 1960 میں شروع ہوا، جس میں FC رینجرز اور پولیس کے دستے بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کے کئی سیکریٹری جنرلز نے عالمی امن میں پاکستانی تعاون کو سراہا. موجودہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی امن کے لیے سب سے زیادہ دستوں کی فراہمی پاکستان کی امن پسندی کا مظہر ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سمیت عالمی سطح پر پاک فوج کی کاوشوں کا اعتراف اعزاز ہے. قوم کے جوانوں نے قیام امن کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اقوام متحدہ کے عالمی دن پر وزیر اعظم نے امن دستوں میں شامل افواج، رینجرز، FC اور پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ 1960 سے 2022 تک دستوں میں جوانوں نے قابل فخر کردار ادا کیا. ہمارے 169 بیٹوں نے شہادت کا مرتبہ پایا. روسی فوج نے کئی دنوں سے جاری لڑائی کے بعد یوکرین کے مشرقی شہر لیمان پر قبضہ کر لیا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر اولاف شولز کو فون یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی میں اضافے پر خبردار کر دیا. جبکہ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس دونباس کی تباہی چاہتا ہے. یوکرین میں روس کی پیش قدمی جاری، ایک اور اہم شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا. ساتھ ہی فرانس اور جرمنی کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی میں تیزی پر خبردار بھی کر دیا. روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج نے کئی روز کی لڑائی کے بعد یوکرین کے مشرقی شہر لیمان کا کنٹرول سنبھال لیا. روسی صدر پیوٹن نے فرانسیسی صدر اور جرمن چانسلر کو ٹیلی فون پر یوکرین کو ہتھیاروں کی مسلسل منتقلی کے خلاف متنبع کیا ہے اور مغربی ممالک کی پابندیوں کو عالمی خوراک کی فراہمی میں تنازع کی رکاوٹ کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. ساتھ ہی یوکرینی غذائی اجناس کی درآمد بحال کرنے کا اشارہ بھی دے دیا. یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ماسکو یوکرین کے مشرقی علاقے دونباس کو تباہ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے عالمی برادری سے روس پر دباؤ بڑھانے پر زور دیا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. اتوار کے دن شہر قائد کا موسم بہتر ہوا تو عوام کی بڑی تعداد سیدھیوں پہنچ گئی. شہری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے میں مصروف ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون یاسر سلیم سے جو اس وقت ساحل پر ہی موجود ہیں. یاسر سلیم، بتائے گا ساحل سمندر پر کتنی بڑی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں شہریوں کی اور وہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آج اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سی ویو پر موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو کہ سنڈے کو فنڈے منانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اور پورے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ سی ویو پر آئے ہوئے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ سنڈے کو کس طرح سے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں.
गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं, बच्चों की क्या डिमांड है, और आज वो अपनी फीमेल्स के साथ और खवातीन के साथ जो है वो यहाँ पे आए हुए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे? संडे छुट्टी है, मौसम भी गर्मी भी है, तो क्या कहने के साथ आए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा है, बस मौसम भी अच्छा हो गया थोड़ा सा, इस वजह से एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं, बड़े दिनों के बाद इतनी सारी रौनक देखने को मिल रही है। बीच में आपको पता है कैसे कराची से आ गए थे, कोरोना आ गया था, ये हो गया था, बस अब अल्लाह का बड़ा करम है, अब लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी? आप आई हैं थोड़ा घरों से, थोड़ा किचन से? जी, किचन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सही बात है आपकी, लेकिन बच्चों को भी एंजॉय करवाना जरूरी होता है। बच्चों को बस ये था कि हम कहीं बाहर जाना है संडे वाले दिन हो या काम दिन हो, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए थोड़ा एंजॉय करने के लिए आए। आज बिल्कुल हमारे साथ एक फैमिली मौजूद थी। यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ अक़साम के खाने और पकवान और कोल्ड ड्रिंक्स ये लेकर आए हुए हैं यहाँ पे जो है, और तैयारियां की जा रही हैं। लोगों से बात हुई और लोगों से भी बात हुई तो कहते हैं कि गर्मी का मौसम है, सी व्यू जो है वो एक बेहतरीन तफरीका है, कराची वालों के लिए सस्ती तफरीका है, तो इसलिए आए हुए हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इस समंदर की लहरों से अटैलियां कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है साहिल समंदर पर मौजूद है और आज के दिन को एंजॉय कर रही है। यासिर सलीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानवी शहजादे हैरी और मैगन के मोमी मुजस्समों को बरतानवी शाही खानदान में दोबारा से शामिल कर लिया गया है। मादाम तसाव म्यूजियम में मलका एलिज़ाबेथ समेत दीगर बरतानवी शाही खानदान के अफराद के मुजस्समे पहले ही म्यूजियम का हिस्सा हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।